Hello and welcome students. You're most welcome in the class. So we are studying the chapter S block elements. Okay, in this chapter we had studied a lot of knowledgeable things about this chapter, and now we are going to study the next topics, which is occurrence. And these topics are I have already explained you in the last video, so you can check out that video for this explanation. Okay, so there is the topic occurrence already cleared in the video. After that, the atomic radius, it is also cleared. You can check out that video. In last video, in that I have explained the ionic radius also. And again, the ionization enthalpy, it is also explained, ionization enthalpy. And then the hydration enthalpy is also. And the next is the diagonal relationship and the oxidation state and the reducing character is also explained. तो यहाँ तक हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर लिया है. यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे. सो व्हाट द टॉपिक इज फैक्टर अफेक्टिंग द रिड्यूसिंग कैरेक्टर. सो विच फैक्टर अफेक्टिंग द रिड्यूसिंग कैरेक्टर ऑफ द अल्काइली मेटल्स एंड द अल्काइली अर्थ मेटल्स. फर्स्ट इज हीट ऑफ वेपराइजेशन. व्हाट इज द हीट ऑफ वेपराइजेशन? हीट ऑफ वेपराइजेशन मीन्स किसी लिक्विड को कन्वर्ट करना है गैस में या वेपर में. सो द हीट इज रिक्वायर्ड इज कॉल्ड हीट ऑफ वेपराइजेशन. ionization enthalpy, you know about the ionization enthalpy. And heat of hydration. Okay, so here I'm writing the note, है ना. I have written a note is the sublimation energy is what. sublimation क्या होता है बेटा? solid to direct convert होता है जब कोई matter vapor में. so the energy required to convert one mole solid to 1 mole of vapor directly, this energy is called sublimation energy. Okay, next thing and very important thing about the alkali and alkali earth metals, the topic is the metallic character. We know that they are the metals, alkali metals and alkali earth metals. Okay, but the metallic character, how the metallic character increase or decrease in the period or in the group. Okay, so alkali metals are most metallic, alkaline earth metals are less metallic. Okay, इसके पीछे रीज़न क्या है? इनका कॉन्फ़िगरेशन. यू नो दैट द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ alkali metal is ns1 and for the alkali earth metal is ns2. so ns2 is a full-filled subshell, we know that. And full-filled subshell, this is the stable configuration. so that's why यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलना इतना easy नहीं रहेगा, टफ रहेगा. और यहाँ से कंपैरिजन करो ns1, तो यहाँ पर एक फ्री इलेक्ट्रॉन है. सो दीज इलेक्ट्रॉन रिलीजेस वेरी easily, very quickly. and the metal का character होता है, they are the electropositive, they have tendency to lose electron. suppose है ना, suppose there are two metals 1 and 2, suppose, and ये it is highly efficient to release the electron and it is not highly efficient. तो यहाँ दोनों में से कौन सा अच्छा मेटल होगा? इट हैज़ मोर मेटेलिक कैरेक्टर. सो जो जितना अच्छे से जो जितना फास्ट इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, दैट इज़ द गुड मेटल. तो यहाँ हम समझ सकते हैं अल्काली मेटल्स और अल्काली अर्थ मेटल्स, ड्यू टू देयर कॉन्फ़िगरेशन, ड्यू टू द स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ns2, दे आर द लेस मेटेलिक. and due to the half filled, or we can say ns1 electron, only one electron in their outermost shell, so that they easily donate the electron or release the electron, so they are मोस्ट मेटेलिक कैरेक्टर, है ना. इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर यही होता है. सपोज ये आपका कोई मेटल है और ये एम प्लस में कन्वर्ट हो रहा है ना. इट हैज़ सपोज इट हैज़ हाई टेंडेंसी टू कन्वर्ट इनटू एम प्लस, सो वी कैन से इसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर हाई है. ओके, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर मीन्स इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी. सो फर्स्ट ग्रुप जो है वो मोस्ट मेटेलिक है, इट मीन्स दे हैव हाई टेंडेंसी टू रिलीज द इलेक्ट्रॉन, सो दे आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव ड्यू टू लेस आयनाइजेशन एंथैल्पी. इजीली इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, लेस आयनाइजेशन एंथैल्पी है. सेकेंड ग्रुप लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन ग्रुप वन ड्यू टू हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी एज कंपेयर टू ग्रुप वन. ओके, व्हेन वी मूव, तो हम चेक कर सकते हैं NS1 की रीजन से ये एम प्लस में कन्वर्ट होगा इजीली. सो व्हेन वी मूव फ्रॉम डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर और मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस. वी नो दैट द साइज इंक्रीजेस. तो आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है बेटा, वो क्या होती है? डिक्रीज होती है. और आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होगा मीन्स रिलीजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी इजी. सो वी कैन से मेटेलिक कैरेक्टर और इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर आर इंक्रीजेस. ठीक है, तो हम यहाँ से रिलेशन देख सकते हैं. आयनाइजेशन एंथैल्पी is inversely proportional to electropositive character. ठीक है, whenever the ionization enthalpy decreases, electropositive character increases.
left to right electropositive character decreases. We know that the size continuously decreasing, so that's why the attraction on the electron of the nucleus is increasing, z effective increases, so releasing of electron becomes more tough and tough. So we can say the ionization enthalpy is increases. So whenever the ionization enthalpy increases, it's inversely proportional, which is the electropositive character आर डिक्रीज। ओके, तो सिंपल बोलें तो टॉप टू बॉटम आने पर इलेक्ट्रॉन निकालना इजी हो जाएगा, और टॉप लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रॉन को निकालना टफ हो जाएगा। क्लियर? यहाँ पर हम चेक करते हैं, कुछ नोट है, इसको पढ़ लेते हैं। ऑल द एल्काली मेटल्स हैव ऑलमोस्ट सब सिमिलर सब्लिमेशन एनर्जी। लिथियम हैज़ हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी बिकॉज लिथियम का साइज बहुत स्मॉल है, ठीक है, एज कम्पेयर टू दी अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। सो लिथियम has highest ionization enthalpy and hydration energy due to its small size। देखो हाइड्रेशन एनर्जी भी हाई होगी, मैंने बताया था जितना स्मॉल कैटायन रहेगा उसके साथ एनायन का इंटरेक्शन उतना ही हाई होगा, और जितना इंटरेक्शन हाई होगा इट मीन्स उसका हाइड्रेशन एनर्जी भी हाई रहेगा। तो लिथियम का स्मॉल साइज है, इस रीजन से इट्स आयनाइजेशन एंथैल्पी इज हाई एंड इट्स हाइड्रेशन एनर्जी इज ऑल्सो हाई ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज। ऑल दीज एनर्जीज सब्लिमेशन, आयनाइजेशन, हाइड्रेशन कंट्रीब्यूट द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, जिससे लिथियम का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बहुत क्या हो जाएगा। lithium the hydration energy compensate the ionization energy. So among alkali metals lithium has highest ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड द हाईएस्ट रिड्यूसिंग कैरेक्टर। तो उसके पीछे रीज़न था कि लिथियम के पास हाईएस्ट रिड्यूसिंग कैरेक्टर क्यों होता है, उसके पीछे रीज़न है इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है वो बहुत क्या है, हाई है। इस रीज़न से ये किसी का भी क्या करेगा, ये खुद का ऑक्सीडेशन करना बहुत फास्ट रखेगा ना। इस इट हैज़ हाई टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज, और जब ये खुद ऑक्सीडाइज होगा इसका मतलब सामने सपोज बी है उसका क्या कर देगा, इसको इलेक्ट्रॉन दे करके इसका रिडक्शन कर देगा। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक इज मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो बेटा मैं समझाता हूँ मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता क्या एक्चुअली। मेल्टिंग पॉइंट इज द पॉइंट ऑफ टेम्परेचर, इट इज द पॉइंट ऑफ टेम्परेचर where a substance get melts, and the boiling point is the point of temperature at the a substance gets boiled। ओके, तो फर्स्टली वो बेटा क्या होगा, मेल्ट होगा, देन उसके बाद क्या होगा, बॉइल होगा। क्लियर? तो मेल्टिंग पॉइंट आएगा, फिर कौन आएगा, बॉइलिंग पॉइंट आएगा। क्लियर है? अच्छा, कैसे पता करेंगे, सपोज ये आपका ए और ए ऐसे करके ये एक मॉलिक्यूल है जिसके ये दो एटम्स हैं, इन दोनों एटम्स के बीच का बॉन्ड ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायरमेंट रहती है, जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड रहता है, दैट इज दी बॉइलिंग पॉइंट। तो देन ये क्या हो जाएगा, ऐसा और ऐसा हो जाएगा, इनके बीच में इंटरेक्शन क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी। ओके, और ये इंटरेक्शन जितना हाई होगा, सपोज एक चेक करते हैं हम, यहाँ पर ऐसे मेटल हैं ये कोई दो, सपोज देर आर टू एटम्स और एक में एटम्स हैं बहुत क्लोज है, so which has the high melting point, it has the high melting point because यहाँ पर bonding strong है, so there are high temperature required to dissociate them। okay, so down the group melting point decreases, down the group melting point decreases, group 2 elements have higher melting point than and boiling point than the group 1, because हम जानते हैं सपोज ये ग्रुप 1 है आपका और ये ग्रुप 2 है, इसका पूरा रीज़न बता दूंगा मैं, ये साइज़ इसका इतना बड़ा है, इसका साइज़ छोटा हो जाएगा, तो व्हेन द साइज डिक्रीजेस, है ना। अच्छा, इसको ऐसे ही पढ़ते हैं अपन, ग्रुप 2 से ग्रुप 1 जा रहे हैं, सपोज अक्रॉस अ पीरियड द साइज डिक्रीजेस, अक्रॉस अ पीरियड मीन्स ग्रुप 1 से ग्रुप 2 जा रहे हैं, उल्टा नहीं देखना है इसको, हमको ऐसे समझना है, ग्रुप 1 से 2 जा रहे हैं, सो साइज डिक्रीजेस ऑब्वियसली, तो वॉल्यूम डिक्रीजेस, तो वॉल्यूम जब भी डिक्रीज होगा तो क्या रिलेशन था, डी इज इक्वल टू एम अपॉन वी, वेन एवर द वॉल्यूम डिक्रीजेज डेंसिटी इंक्रीजेस। ठीक है, डेंसिटी इंक्रीज मतलब क्या होगा, सेम वॉल्यूम में नंबर ऑफ पार्टिकल्स और नंबर ऑफ एटम्स का जो नंबर है वो इंक्रीज हो जाएगा। सपोज यहाँ पर 100 आ रहे हैं, तो अगर मैं वॉल्यूम को डिक्रीज कर दूंगा सॉरी, तो डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, इस कंपैरिजन में 100 से भी ज़्यादा उसमें आ जाएंगे। सो जनरली डी इज इक्वल टू एम अपॉन वी होता है, डेंसिटी इंक्रीजेज, वेन एवर द डेंसिटी इंक्रीजेज मीन्स पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, सेम वॉल्यूम है, सपोज चेक करो आप, है ना, दो वॉल्यूम है, एक में पार्टिकल से 100 और एक में पार्टिकल से 50, तो किसकी डेंसिटी हाई होगी, इसकी हाई होगी। सो पार्टिकल्स बहुत क्लोज रहेंगे मीन्स इनके बीच में इंटरेक्शन इज हाई, सो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। क्लियर? ये डेंसिटी का इफेक्ट पड़ता है। तो टॉप टू बॉटम हम जाते हैं, तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस, रीजन क्या है, साइज इंक्रीज होता है, साइज इंक्रीज होता है मीन्स साइज यानी कि वॉल्यूम इंक्रीज होता है, इट मीन्स डेंसिटी डिक्रीज होगा, और वेन एवर द डेंसिटी डिक्रीजेज तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस। ओके, तो जो फ्रेंशियम है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेज मीन्स बहुत लो टेम्परेचर पे ये क्या हो जाएंगे, मेल्ट हो जाएंगे। क्लियर?
सीजियम इजीली मेल्ट इवन और प्लेसिंग ऑन पाम, आप अपनी हथेली पे रखोगे, पाम पे रखोगे तो ये इजीली आपके बॉडी से टेम्परेचर गेन करेगा, देन इट विल बी कन्वर्ट इनटू द लिक्विड स्टेट। तो इतना इजीली मेल्ट हो रहा है, इट मीन्स देयर मेल्टिंग पॉइंट इज वेरी लो। सो व्हेन वी कैन से लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, व्हेन यू मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, the size increases, density decreases, it means melting point also decreases। ठीक है, अच्छा, Li has the highest melting point, इसके पीछे रीजन क्या है? ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज, हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी, जिससे क्या होगा, बाइंडिंग एनर्जी इन इट्स क्रिस्टल लैटिस इज वेरी हाई, सो Li हैज द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, देखो टॉप टू ये साइज स्मॉल, देन बड़ी हो रही है, देन बड़ी हो रही है, देन बड़ी हो रही है, तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन आर वेरी क्लोज, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन आर so far to each other, and proton and electron are in this case are very far to each other, so attraction प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, सो वेन एवर द अट्रैक्शन डिक्रीजेज उनको तोड़ना बहुत ईजी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट डेंसिटी तो आप जान ही समझ गए, अल्काली मेटल्स हैज बिग साइज, सो लो डेंसिटी, और अल्काली अर्थ मेटल्स ग्रुप टू एलिमेंट्स आर मोर डेंसर देन द अल्काली मेटल्स। रीजन है, सेम वॉल्यूम में सपोज हम अल्काली मेटल को फील करें, उनका साइज ये रहेगा, सपोज वी आर टेकिंग अ साइज आइडियल साइज, तो ये रहेगा, तो सपोज 6 आ गए, इसी में ग्रुप 2 ले रहा हूँ तो साइज बिकम्स लेस, तो यहाँ पर सपोज ये छोटे हो गए ऐसे, तो देन यहाँ पर ये 6 नहीं आ गए, सपोज कितने आ गए, 10 आ गए, सो विच हैज़ द हाई डेंसिटी, इट हैज़ द हाई डेंसिटी। ठीक है, सो ग्रुप टू एलिमेंट्स आर मोर डेंसर देन द अल्काइली मेटल्स। ठीक है, डाउन द ग्रुप हम जाएंगे, सो एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस, डेंसिटी, एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, सो डेंसिटी डिक्रीज होगी, बिकॉज एटॉमिक मास इंक्रीजेज। अच्छा, यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, डेंसिटी जनरली हमें क्या माइंड में आता है, वेन एवर द साइज इंक्रीजेज मीन सेम वॉल्यूम में लेस नंबर ऑफ एटम वहाँ पर ऑक्यूपाई हो सकते हैं, बट यहाँ पर वेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम द साइज इज इंक्रीजेज, बट वी नो दैट व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम डेंसिटी का क्या सीन होगा, व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम the mass is also increases, so mass and density is directly proportional, so that's why density increases। Okay, so because atomic mass increases which more than compensate। अच्छा, यहाँ पर दोनों चीज़ें होंगी, एक तो मास हो गया और एक साइज हो गया, ठीक है ना, साइज इंक्रीज हो रहा है मीन्स वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, बट विच इज़ मोर इफेक्टिव, मास इज मोर इफेक्टिव, सो अल्टीमेटली ये लेके जाएगा डेंसिटी को हाई। ओके, तो यहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं रहना है, ये एक्सेप्शन नहीं समझना है, इसको थोड़ा कॉन्सेप्ट से समझना है। ओके, तो डेंसिटी ऑफ पोटेशियम इज ग्रेटर देन, सॉरी इज लेस देन Na, ये एक्सेप्शन है। अच्छा, जनरली क्या हम पढ़ रहे हैं, व्हेन यू मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ठीक है, तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सोडियम हो गया, पोटेशियम, सो व्हेन यू मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम वी आर सेइंग दैट, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, वी आर सेइंग दैट द डेंसिटी इज ऑल्सो इंक्रीजेज। इसका मतलब क्या होना चाहिए, पोटेशियम की जो डेंसिटी है, पोटेशियम की जो डेंसिटी है वो Na से हायर होना चाहिए। क्लियर, समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? द जनरली हम रूल से चलें तो पोटेशियम हैज़ हायर डेंसिटी देन द सोडियम, बट इट इज़ नॉट ट्रू व्हेन वी सी प्रैक्टिकली द डेंसिटी ऑफ पोटेशियम, जस्ट इसका रिवर्स हो गया, द डेंसिटी ऑफ पोटेशियम इज हायर, सॉरी Li, Na और K, डेंसिटी इंक्रीज हो रहा है मीन्स क्या होना चाहिए, पोटेशियम का डेंसिटी सोडियम से हाई होना चाहिए, बट एक्चुअल में क्या होता है, पोटेशियम हैज़ लेस डेंसिटी देन द सोडियम। तो यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है, एक्सेप्शन है, सो इसका पीछे रीज़न क्या है, K इज़ हायर, हाउएवर K इज़ लाइटर देन द सोडियम। ठीक है, हम जानते हैं सोडियम पहले लाइटर देन क्यों होगा, बिकॉज Li, Na और K। अच्छा, इसके पीछे रीज़न क्या है हम देखते हैं, लिसन, however K however is lighter than Na, which is due to an abnormal increase in atomic size, इसकी साइज बहुत बढ़ जाती है, because of presence of पेनल्टीमेट डी ऑर्बिटल। अब पेनल्टीमेट क्या होते हैं, मतलब अंदर वाले, जैसे ये आपके हो गया बाहर है, अंदर वाले डी हो गए ना, सो डी इसको बोलते हैं पेनल्टीमेट, मतलब अंदर वाले जो इनसाइड जो डी ऑर्बिटल्स हैं उसको बोलते हैं पेनल्टीमेट। ड्यू टू इफेक्ट ऑफ पेनल्टीमेट डी ऑर्बिटल्स इन के, वॉल्यूम ऑफ के इंक्रीजेस, वॉल्यूम ऑफ के मतलब ये आपका पोटेशियम आ गया, सॉरी ये आपका प्रोटॉन है, मीन्स न्यूक्लियस है, यहाँ पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन फील हो गए, और ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर क्या होगा, शील्डिंग इफेक्ट क्रिएट कर देंगे, और शील्डिंग इफेक्ट के रीजन से ये से दूर होता जाएगा, है ना, एट्रैक्शन फोर्स लेस हो जाएगा, इट मीन्स साइज इंक्रीज होगा, साइज इंक्रीज मतलब क्या हो गया कि वॉल्यूम इंक्रीज होगा, और वेन एवर दी वॉल्यूम, या मास तो इंक्रीज हो ही नहीं रहा है इतना कुछ, है ना, नॉर्मली इंक्रीज हो रहा है, सो दैट्स वाई डेंसिटी डिक्रीजेस, तो वॉल्यूम इंक्रीजेस मीन्स डेंसिटी
डिक्रीजेस। सो डेंसिटी डिक्रीज हो रहा है, और डेंसिटी आप चेक करो, डेंसिटी डिक्रीज हो रहा है, सो Li Na और K, ठीक है ना। सो K हाउवर इज लाइटर देन द सोडियम, इट इज़ ड्यू टू एन एबनॉर्मल इंक्रीज इन इट्स एटॉमिक साइज। पर इसमें क्या हो गया, पेनल्टीमेंट इफेक्ट आ गया, शील्डिंग इफेक्ट आ गया, जिस रीजन इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, वॉल्यूम इंक्रीज होने से इसका डेंसिटी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। जनरली क्या होना चाहिए था, डेंसिटी K का इंक्रीज होना चाहिए था, बट इन प्रैक्टिकली सोडियम का हाई है, उसके पीछे रीज़न है वही पेनल्टीमेंट डी ऑर्बिटल्स। ऐसे ही सेम टू सेम आप समझ सकते हो कैल्शियम और मैग्नीशियम में सेम है। क्यों सेम है, बिकॉज ये Li Na और K। ऐसे ही क्या होता है, Be और बेटा मांगे तो Mg और कार तो Ca। तो जो रिलेशन इन दोनों का रहेगा, सेम रिलेशन क्या रहेगा, इन दोनों का भी रहेगा, ठीक है। तो Ca की जो डेंसिटी होती है वो डेंसिटी Mg से हाई होती है। क्या ये सही है, डेंसिटी ऑफ Ca, हम क्या करें, टॉप टू बॉटम आते हैं, टॉप टू बॉटम आते हैं, तो Li Na और K, ठीक है। तो यहाँ पर पोटेशियम की हाई होनी चाहिए थी, बट सोडियम की हाई है। ऐसे ही Be और Mg और Ca, तो जनरली Ca की हाई होनी चाहिए थी और Mg की कम। तो ये इसको रिवर्स, इसको उल्टा कर देना आप, इसको आप उल्टा कर देना, बाकी सेम पेनल्टीमेंट इफेक्ट ही है। उसके बाद नेक्स्ट है बेटा हमारा फ्लेम टेस्ट, ग्रुप 1। फ्लेम टेस्ट क्या होता है, आप किसी को भी सपोज लिथियम सोडियम पोटेशियम को हीट करोगे, फ्लेम के साथ में इसको हीट करोगे, सपोज ये आपकी फ्लेम जल रही है, और इसमें आप उस रोड पे उस मटेरियल को लेके आओगे, है ना, कंपाउंड को, या जिसमें कैल्शियम प्रेजेंट है, सोडियम प्रेजेंट है, या रुबिडियम प्रेजेंट है, तो उसका एक पर्टिकुलर फ्लेम आएगा ना, उस फ्लेम की कलर से हम फाइंड आउट कर सकते हैं दैट विच काइंड ऑफ एलिमेंट इज दिस। सो इट इज़ कॉल्ड द फ्लेम टेस्ट। तो हम यहाँ पर देखते हैं LiNaKRbCs। तो जब भी Li को बर्न करेंगे तो क्रिम्सन रेड कलर आएगा, सोडियम को गोल्डन येलो, पोटेशियम पेल वॉयलेट, रुबिडियम पर्पल और सीजियम स्काई ब्लू, ठीक है। तो हमको जैसे कैसे याद रखना है, लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम तो हमें याद है, ऐसे याद रखना, रेड, फिर वो कन्वर्ट हुआ किसमें, गोल्डन येलो, पेल वॉयलेट, पर्पल एंड स्काई ब्लू। तो इनके पर्टिकुलर कलर हैं, इसको बोलते हैं फ्लेम टेस्ट। फ्रेंशियम बीइंग रेडियो एक्टिव डज नॉट गिव फ्लेम कलरेशन। तो ध्यान रखना, ये फ्लेम कलर नहीं देता है, दैट्स वाई फ्रेंशियम कोई फ्लेम टेस्ट नहीं देगा। ग्रुप 2 में चेक करेंगे, कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम और रेडियम यही देते हैं, दूसरे नहीं देंगे। तो यहाँ पर ब्रिक रेड, येलो, एप्पल ग्रीन और क्रिम्सन। बी एंड एम जी, अच्छा क्वेश्चन आएगा माइंड में, सर बी और एम जी क्यों नहीं दे रहे, तो उसके पीछे रीज़न है, इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा आसानी से, रीज़न है बिकॉज ऑफ देयर हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी, बिकॉज इनका साइज बहुत स्मॉल है, ग्रुप में अपर साइड में, सो इलेक्ट्रॉन रिलीज होना इतना ईजी नहीं है। हाउ एवर डू नॉट इम्पार्ट एनी कलर ऑफ द बुनसन फ्लेम, ठीक है, बुनसन बर्नर में जलाना तो बुनसन फ्लेम आएगा। तो सिंपल सी बात है, कोई भी इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ग्राउंड स्टेट जिसको हम GS लिखते हैं, और इसको एक्साइटेड स्टेट लिखते हैं। यहाँ से इलेक्ट्रॉन कभी भी एनर्जी लेके जिसको हम हीट करेंगे तो जम करके कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, और यहाँ से वापस यहाँ आएगा, तब वो रेडिएशन को इमिट करेगा, वही में कलर शो करेगा। तो बट यहाँ पर क्या हो रहा है, बी और एम जी में आयनाइजेशन एंथैल्पी इज हाई, तो इस रीजन से यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज ही नहीं हो रहा है, सो दैट्स वाई कलर शो नहीं होंगे, दे डू नॉट इम्पार्ट दी कलर। तो ये आपका कुछ टॉपिक था जो मैंने कंटिन्यू किया है, आज के आगे वाली क्लासेस में हम इसको कंटिन्यू करेंगे, कुछ पार्ट एडिशन कर लिया है उसी वीडियो में। सो आई थिंक इट विल बी हेल्पफुल टू यू। सो ऑल दी बेस्ट एंड गुड लक टू ऑल ऑफ दी स्टूडेंट्स।